Hey guys, this is just a theoretical video in which we are going to talk about what is the difference between Spring Framework and Spring Boot, right? At the basics, हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है, I can tell, right, without even going further into Chat GPT or without even noticing anything, I just know कि मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ा अभी तक, right? In Spring Boot, everything is auto configured. The thing is the servers, right? Example, the Tomcat server is already embedded in this, right? And when I say about speed at the development side, it is also greater in Spring Boot as compared to Spring Framework. So when I compare to the Spring Framework to Spring Boot, there are these basic differences that Spring Framework does not do auto configuration, right? Spring Framework does not do auto configuration, but Spring Boot does. Just example, it automatically embedded the Tomcat server. If I talk about something else, it has a dispatcher servlet in MVC, right? It is an important topic which we are going to talk about later, right? But it automatically configure it, right? It automatically configure it. So that is the difference, basic difference between a Spring Framework and a Spring Boot. When I dive into this, we are just going to okay, we're just going to say that this configuration, Spring Framework has manual configuration and Spring Boot is has auto configuration. When I'm going to talk about server setup, Spring Framework has external server. ठीक है, यहाँ पे मुझे मैनुअली खुद जाके एक्सटर्नली टॉमकेट सर्वर को यहाँ पे अपेंड करना पड़ता है, बट इन स्प्रिंग बूट इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड. When I talk about dependency management, Spring Framework dependencies मैनुअल डिफाइन करनी पड़ती है और Spring Boot में स्टार्टर्स मिलते हैं. डेवलपमेंट की स्पीड हमने बात करी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्लो होता है, स्प्रिंग बूट में फास्ट होता है. यूज केस की बात करते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेसिकली लार्ज एंटरप्राइज में यूज होता है और स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, फास्ट डेवलपमेंट या फिर क्लाउड एप्स में यूज होता है. दिस वॉज इट. इसके बाद अगर मैं मैवन की बात करता हूँ, ठीक है, मैवन इज बेसिकली व्हाट, मैवन इज बेसिकली okay, so when I talk about, let's not talk about maven first. Let's talk about this dependency management, right? When I talk about dependency management, we have a what, we have a pom file, that is pom.xml. This pom.xml is here. This pom.xml basically shows me all those dependencies which are automatically configured by whom, Spring Boot, right? So these are some dependencies, right? Group name is this, artifact name is this, and this is the basically dependency. That's it. If I have to see, if I want to see the dependencies, I can just come to the pom.xml file and I just come into under this dependencies folder and I can just check it, right? After that, I'm sorry, after that, if I want to talk about maven, right? Maven is basically what, maven is basically the build development tool that helps us to build and deploy the web applications. That's it. That maven is also comes under pom.xml, and this is it. When I talk about artifact, this is the maven plugin, right? So what basically maven does, maven basically does what, it says, hey, maven says, hey, if you want any type, any kind of help, just ask me to do it. And when I ask Maven to do that, it's just going to the internet, it's just going to call and download it from internet and just going to call back, return back to the user
who has demanded that particular dependency. Okay. So when I come here, what Maven does, you can just read this. Maven एक प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा है. तुम सिर्फ बोलते हो, सिर्फ मुझे स्प्रिंग बूट चाहिए, और मैवन बोलता है ओके ब्रो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. फिर जब प्रोजेक्ट बनाना हो, रन करना हो, टेस्ट करना हो, मैवन ऑटोमेटिकली सब हैंडल कर लेता है. दिस वॉज इट. अगर मैं किसी भी सिमिलरली बहुत समराइज करके ये बात कहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मैवन एक डिपेंडेंसी मैनेजर है, बिल्ड टूल है, और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर है. दैट्स इट. राइट. लगे हाथ, चलो ये भी पढ़ लेते हैं कि ग्रेडल और मैवन के बीच में फर्क क्या होता है. राइट. ओके. सो ग्रेडल बेसिकली एंड मैवन बेसिकली पॉम डॉट एक्सएमएल यूज करता है, और ग्रेडल बेसिकली कॉटलिन स्क्रिप्ट यूज करता है. तो इफ वी वांटेड, राइट, हम लोगों को जावा में पूरा एप्लीकेशन डेवलप करनी थी, दैट्स व्हाई वी यूज्ड मैवन. वी डिडंट नो कॉटलिन, दैट्स व्हाई हमने ग्रेडल यूज नहीं करा. ओके. मैवन इज स्लोअर, रन्स फुल बिल्ड every time. Okay. Much faster. Gradle is faster. Okay. Build type, it is declarative. It is hybrid. Performance, it's normal. It's very fast. It's easy. It's slightly harder at first. Dependency management, good. Same as Maven. Basically, we can say कि अगर हमें Kotlin आती है तो Gradle is the best option to use. But if we want to go further just with what Java, right, we in Spring Boot we just have to go with Maven. Right, that's it. This was the theory part which we were going to cover today, and we just covered that. Let's see कितनी देर हो गई. It's just 7 minutes, right? So I wanted to talk something to you, right? Recently एक बंदे ने Telegram भी join करा, whose name is Nitin Anand, right? Hey brother, if you are watching this, I just want to tell कि यार ये थोड़ा ना ज़्यादा हो रहा है. लाइक आई एम जस्ट लर्निंग अ लॉट, एंड उस चक्कर में कि आई नीड टू मेक अ वीडियो, आई एम जस्ट, राइट, आई एम जस्ट होल डे बिजी एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई अदर थिंग्स. राइट नाउ मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, राइट, एंड मैं वो एग्जाम्स के लिए भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ. सो आई नो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बट मैं अपने कंटेंट डिलीवरी में कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता. एंड दैट इज़ द रीज़न कि आई थिंक कि मुझे एक हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 वीडियोस डालनी चाहिए, एंड आई शुड कीप ब्रेक बिटवीन देम, राइट, सो दैट दिस दोज पीपल जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट, वो भी इसे अच्छे से टाइम देके अच्छे से समझ सके, वो इम्प्लीमेंट करके समझ सके, वो आराम से नोट्स बना सके, और मैं भी थोड़ा टाइम लेके और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकूं, ताकि ताकि जो चीज़ें मैं 4 घंटे 5 घंटे लगा के पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे में वो चीज़ डिलीवर कर सकूँ. राइट. एंड दैट इज़ द होल पॉइंट, दैट इज़ द होल मोटिव ऑफ दिस चैनल, कि मैं अगर जो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ रहा हूँ ना, आई वॉन्ट इट सो in a chunks, right, I want to explain you in chunks of that. जैसे कल हम लोगों ने ऑटो वायर्ड की बात करी थी, नो वन हैज एवर एक्सप्लेन्ड मी दिस ऑटो वायर्ड का सिस्टम. ठीक है, क्योंकि सबको लगता है भाई हमने कर लिया तो ऑटो वायर्ड बहुत इजी चीज हो गई, बट द वेरी फर्स्ट पर्सन जो यूज कर रहा है भाई, वो पता है, वो आउट ऑफ माइंड बस ऐसे लिख रहा है, वो दूसरी क्लास में जाके एट द रेट कंपोनेंट कर रहा है, वो दूसरी मेन वाली क्लास में जाके एट द रेट ऑटो वायर्ड करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा है. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऑटो वायर कर क्या रहा है. बट हियर माई पीपल, माई सब्सक्राइबर्स नो कि भाई अगर एक जगह पे एट द रेट कंपोनेंट बन रहा है ना, तो ये एक बेसिकली बीन बना दे रहा है. बीन बनाने के बाद अगर मैं ऑटो वायर कर रहा हूँ ना, तो ये ऑटो वायर आ गया, ये वायर मेरा कहाँ जा रहा है, दूसरी क्लास में जा रहा है, राइट. एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑटो वायर्ड इस ऑब्जेक्ट से हो गया, और अब मेरे पास इस क्लास के जहाँ पे एट द रेट कंपोनेंट्स थे लिखा था,
उसके सारी डिपेंडेंसी इसमें इंजेक्ट हो जाएंगी, और अब ये ऑब्जेक्ट कह सकता है कि अब तो मैं भाई इसको बीन्स, अब तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब मैं बीन बन चुका हूं, और मैं अब बीन बन के इसकी सारे मेथड्स को यूज करूंगा। मेरे सब्सक्राइबर्स को ये चीज ऐसे पता है, बट बाकी पूरी दुनिया को नहीं पता है। एंड दिस इज द वे आई वॉन्ट टू डिलीवर टू यू ऑल, right? So I'm not going to just speed up the process, right? I'm just going to walk in a good pace, right? हमें खरगोश नहीं बनना है यार, कछुआ बन के आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से समझेंगे, पर जो समझेंगे वो यहाँ रखेंगे, ठीक है? भूलने वाली चीज नहीं है भाई, भूलना नहीं है, ठीक है? सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रोज वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मे बी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि देर इज अ किक, राइट? मैं रात भर उठ के पढ़ रहा हूँ, मैं रात भर उठ के पढ़े जा रहा हूँ 2 बजे तक, एंड फिर अगले दिन मैं कॉलेज से पेपर दे के आ रहा हूँ, मैं लैपटॉप पकड़ के वीडियोस बनाने लग जा रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, राइट? एंड वट एवर वी डू इन आवर लाइफ इज फॉर समथिंग, फॉर दिस किक जो अभी मुझे मिल रही है। और आई थिंक इफ एनीथिंग लैक्स इन, यार मैं अपनी कहानी बताने लग गया यार, आई एम सो सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। सो ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं यार, और पढ़ते रहना, अगले टाइम बार में मिलते हैं, बाय। सॉरी यार।